Okay, then I think we can start from the first horoscope. This is the horoscope of a female. The date of birth is 11th July 79. Time of birth is 2:21 hours. Place is Delhi. And it's written that these are the details of a girl who has filed case of domestic violence against her husband. Please tell when the things will get settled actually. So this is the question and this is the horoscope actually. डोमेस्टिक वायलेंस कौन सा वाला है क्वेश्चन है इसका? डोमेस्टिक वायलेंस फीमेल का है Female का horoscope है husband and she got married actually in 11th February 2020. It means last year only. And she has already filed a case of domestic violence against her husband. So we have to see the position of this horoscope. I think this has been sent by Dr. Jaya Gupta, no? Am I correct? yes Yeah. sir Right. So let us see the horoscope. Let's examine the plus and minus points and what has led to the domestic violence. So we start in the same way. Let's see the position of all the degrees of all the planets. These are the degrees, but Mercury is written combust, but it's not combust. 8 degree का difference है, तो ये combust नहीं होगा. Only thing is कि Jupiter is a planet whose degree is 1. very weak And let us see the strength also. That will also give you some idea. See, this is 6.5 point. This is okay. This is okay. Only Jupiter is a planet whose strength is less than the required. That is only Jupiter is a planet whose strength is less than required. Otherwise, all planets are having strength more than what is required actually. And strength of Jupiter also you see in the Shadvala, it is the last one, that is the weakest planet in this horoscope. Just a minute. Right. So, and even if we see the Rashmi Kiran is here 12.78. So Rashmi Kiran is also less. So let's examine the horoscope now. Let's see the plus point first. What are the positive points in this horoscope? आप बताइए, can somebody tell what are the positive points in this horoscope? And we can open that Navansh also because we are talking of marriage. Navansh, I can, sorry. Navansh is here. Now, let's talk about the positive points. What are the positive points in this horoscope? सर मरकरी इज इन सर मरकरी अपने हाउस में है, जुपिटर अपने हाउस को देख रहा है 8th हाउस मरकरी अपने साइन में है और जुपिटर जो है वो 8th हाउस को भी देख रहा है, राइट? और सैटर्न भी अपने साइन को देख रहा है 10th हाउस, और सैटर्न 8th हाउस का कारक भी है सर अपने सैटर्न जो है हाउस 10th में हाउस को देख रहा है जो कि उसका अपना साइन है, राइट? और सैटर्न 9 और 10 का लॉर्ड है। कारक सैटर्न सैटर्न कारक जो है, है। हाँ, योग कारक प्लैनेट है, हाउस बिल्कुल। सैटर्न इज ए योग कारक प्लैनेट, बिल्कुल ठीक है। और any other positive point? Let's talk about positive point only first. सर सैटर्न जो है जहां देख रहा है वहां सन बैठा है जो सुखेश है, तो सैटर्न डिस्टर्ब करेगा वहां पर। नहीं, उसकी अभी बात कर रहे हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव पॉइंट। जैसे इन्होंने कहा कि सैटर्न योग कारक है, तो इस करेक्ट, इस योग कारक लग्नेश इसमें एक्सचेंज हो रहा है क्या प्लैनेट्स का? 4 नंबर में मार्स है और 6 नंबर में मून है।
तो कहाँ छह एक्सचेंज हुआ? नंबर मरकरी का 6 नंबर नहीं, अच्छा 6 नंबर छह। मर्क्यूरी का है, राइट राइट, नहीं, मर्क्यूरी है। मार्स है। कोई और पॉजिटिव पॉइंट है इस हॉरोस्कोप में? लगन लॉर्ड इज इन थर्ड हाउस, उपाच्यस्थान। लेट अस सी नाउ कि मुझे लगता नहीं है कोई और योग वगैरह है इस हॉरोस्कोप में इसके अलावा। सन मरकरी वो तो नॉर्मल जैसे बुध आदित्य योग है, और गज केसरी योग भी है, जुपिटर और मून जो है आपस में केंद्र में है, तो गज केसरी योग भी है। बट नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट द मैरिज, प्रॉब्लम इन द मैरिज, एंड द कारका फॉर marriage for the female is Jupiter, right? So what is the position of Jupiter in this case? जुपिटर अपने घर को देख रहा है, 8वें घर को। नहीं, 8वें सर घर की तो ठीक है, बट व्हाट इज द पोजीशन सेकंड ऑफ हाउस, कि जुपिटर की सेकंड क्या हाउस को तो position? खराब कर दिया ना। जुपिटर की सर क्या? 8th हाउस का लॉर्ड भी है लॉर्ड है, जुपिटर, तो इसलिए 8th का लॉर्ड। नहीं नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जुपिटर इन दिस केस? जुपिटर इज second house- वीक, डिग्रीज बहुत वीक सर है, जुपिटर के उसमें स्ट्रेंथ वीक है, और और जो नवांश कि में मतलब 8th हाउस में है। फीमेल की उसमें ये कारक होता है पति के सुख का, और ये नवमांश में 8th हाउस में जाके बैठ गया है राहु के साथ। देखिए, पहले अभी लग्न की बात करिए। लग्न में जुपिटर जो है मरकरी के साइन में है, विच इज इट्स एनिमी साइन। पहली चीज, जुपिटर आप देख रहे हैं कि वीकेस्ट प्लैनेट है इस हॉरोस्कोप में, एंड इसका एफ्लिक्शन किस किस प्लैनेट से है? सर सारे मेलेफिक से है, सैटर्न से भी है। It is afflicted with all malefic planets. Is afflicted with all Saturn, malefic राहु। planets. जुपिटर के साथ सन भी है, मार्स इस साइड में है, राहु भी देख रहा है और शनि भी देख रहा है। तो जुपिटर जो है वो बहुत ही एक वीक पोजीशन में है इस हॉरोस्कोप में, which is not good because Jupiter is the कारका for the marriage. दूसरा, ये मून की पोजीशन देखिए, सर केमद्रुम योग है। केमद्रुम योग है, वेरी गुड। तो मून भी जो है वो केमद्रुम योग से सफर कर रहा है, और इसके ऊपर भी जो है वो सैटर्न का भी एस्पेक्ट है, और किसी का तो नहीं है, सैटर्न का एस्पेक्ट है जी। तो मून जब केमद्रुम में योग में होता है तो नेचुरली दैट वी हैव सीन कि इट्स रियली ए वेरी नेगेटिव हॉरोस्कोप, वेरी नेगेटिव पोजीशन ऑफ मून। मेंटली ऐसा व्यक्ति जो है बहुत कुछ नहीं कर पाता है, मेंटली बहुत वीक टाइप का होता है कि कुछ उसका मून जो है वो रिजल्ट नहीं देता बिल्कुल भी जो है। पर सर इनके रूपास तो काफी स्ट्रांग है, रिक्वायर्ड से ज्यादा है रूपास इनके 8.3। जुपिटर में कम है। नहीं, जुपिटर मून के बता रही थी मैं, मून हाँ, का भले ही रूपा minimum ज्यादा मांग रहे हो, हैं। बट वो तो स्ट्रेंथ बता दिया कि मून की इन्होंने स्ट्रेंथ निकाली, बट जो केमद्रुम योग है जिसकी वजह से मून एक्टिवेट ही नहीं होगा, कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, यहाँ पे एक्सॉल्टेड भी होता, कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बट इस योग की वजह से मून जो है वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा। इट मींस मून इज नॉट गिविंग इट्स रिजल्ट्स। अंकल कैन यू रिकैप केंद्रम योग के लिए केमद्रुम recap योग कर दीजिए। केमद्रुम हाँ योग जी। is when there are no planets on either side of the moon except सन, राहु केतु के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सन राहु केतु के अलावा there should be no planet on either side of the moon. अनिल जी, कुछ लोग बोलते हैं कि यदि मून से 1, 4, 7, 10 पे प्लैनेट आ जाए तो केमद्रुम योग नलीफाई हो जाता है। That is possible only if Jupiter is very strong. और 1, 4, 7, 10 में यदि और प्लैनेट आ जाए तब भी केमद्रुम खत्म हो जाता है, वो ठीक नहीं है। नहीं, that is not correct. वो 3-4 कंडीशन थी, उसमें यही था कि जुपिटर जो है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए, और यहाँ जुपिटर बहुत वीक प्लैनेट है, तो केमद्रुम योग तो खत्म नहीं होता। और केमद्रुम योग होने से, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत नेगेटिव योग है, और जो भी लाइफ इसमें अगर कोई पॉजिटिव होता भी तो वो भी उसको नेगेट कर देता है। अनिल जी, मून अपने घर में होता है तो केमद्रुम योग खत्म हो जाता है क्या? मून अगर बहुत स्ट्रांग है, डेफिनेटली अगर मून बहुत स्ट्रांग है तो, और या मून फिर अपने घर में है, हाँ, बिल्कुल अपने साइन में है या स्ट्रांग है
तो उस केस में इट कैन गेट नलिफाइड एक्चुअली, ओके बट नॉट इन दिस केस। सर अगर मून केंद्र में है तब भी खत्म हो जाता है केंद्र नहीं 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 नहीं, Yes. Okay, sir. it has to be strong, moon has to be strong, क्योंकि Okay, मून अगर बहुत स्ट्रांग होगा देन इट कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ एक्चुअली, अदरवाइज केमद्रुम योग में लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है बिल्कुल। सर अगर अगर चंद्रादि योग बनता तो ठीक रहता, तो भी कुछ हो जाता। हाँ, फिर तो नेचुरली चंद्रादि योग बनता, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर तो हाँ, मून चाहे वो बहुत, अकेला होता, हाँ चाहे मून अकेला होता। बिल्कुल, फिर तो मून बहुत स्ट्रांग हो जाता। तो अंकल इसमें implications are that mentally the person becomes weak or is it not able to take decisions? Moon does not operate at all. Moon does not get activated at all. It means whatever results of the moon you expect in your life, you will not get actually. आपको माइंड ही जैसे कहते हैं ना कि माइंड का बोर्ड जीरो हो गया बिल्कुल जो है। And moon is a very important planet. It gives you status also. It gives your सर फिर तो mental. गज केसरी, फिर तो गज केसरी योग का भी कोई मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आए। नहीं, गज केसरी योग तो बनेगा ही बनेगा, वो तो आप उसको कैसे अवॉइड करोगे? वो तो जब मून और जुपिटर आपस में केंद्र में है, वो ये नहीं कहता कि मून वीक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बट मून और जुपिटर अगर आपस में केंद्र में है तो गज केसरी योग तो बनेगा ही बनेगा। पर जानते यदि इस केस में कोई भी योग नहीं बनेगा, कुछ लोग बोलते हैं यदि मून के आसपास कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं है ही नहीं, तो केमद्रुम योग बन गया ना फिर। हाँ, फिर गजकेसरी योग भी नहीं बनेगा, कोई भी योग नहीं बनेगा। नहीं 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 नहीं, उससे मतलब नहीं है। मून और गज केसरी योग में ये नहीं है कि मून की क्या पोजीशन होनी चाहिए, इस तो सिर्फ मून और जुपिटर का आपस में रिलेशन है, म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो जुपिटर और मून यहाँ पर आपस में क्वाड्रेंट में है, तो गज केसरी योग तो बन ही रहा है। जान साहब, जैसे एक्सचेंज वाला योग या योग कारक वो सब ऑपरेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बट जैसा मैंने कहा ना कि जो भी पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, अगर केमद्रुम योग होता है तो सबको नेगेट कर देता है। जब आपका माइंड ही एक्टिव नहीं है तो आप क्या करोगे लाइफ में, कुछ कर नहीं सकते आप। सर अगर मून लग्न में होता है, मतलब मून खुद फर्स्ट हाउस में बैठा है और 12th और 2nd में कोई प्लैनेट नहीं है, तब भी केंद्र योग होगा। मून कहाँ पर बैठा हुआ? लग्न में, फर्स्ट हाउस में। करेक्ट। और 12th और 2nd में कोई प्लैनेट नहीं है। बट मून उच्च का हो जाता, फिर एक्सॉल्टेड हो जाता है यहाँ पर। ओके सर। तो मून कुड हैव बीन वेरी स्ट्रांग इन दैट केस, फिर वो नलिफाई हो जाता है। वो कंडीशन आपको बताई थी, 3-4 कंडीशन है, वो कंडीशन यही है सारी की सारी कि द मून इज वेरी स्ट्रांग। ओके सर। या और यहाँ पर मून के ऊपर कोई बेनिफिक एस्पेक्ट भी नहीं है, सिर्फ सैटर्न का ही एस्पेक्ट है, वो तो और उसको खराब कर रहा है। तो एक केमद्रुम योग भी एक रीजन है लाइफ को खराब करने का, लाइफ को मिजरेबल करने का। और दूसरा जो मेन यहाँ पर है कि जुपिटर है, जुपिटर जो है प्लैनेट है, सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज है इन द केस ऑफ फीमेल। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जुपिटर वीक है एंड इट इज अफ्लिक्टेड विद ऑल मैलिफिक प्लैनेट्स। पोजीशन भी अपने एनिमी साइन में बैठा हुआ है एंड इट इज अफ्लिक्टेड विद ऑल मैलिफिक। नाउ लेट्स सी द नवांश आल्सो, व्हाट नवांश इज। सर इसमें मार्स और वीनस की जो डिग्री है उसमें 1 डिग्री के आसपास का ही फर्क है, तो ये कह सकते हैं कि ग्रह युद्ध की स्थिति बनी हुई है और थोड़ा सा वो वीनस और मार्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है। नहीं चलिए वो तो खैर अभी छोड़ दीजिए, वो दैट इज नॉट ए क्वेश्चन, बट ओनली थिंग यू कैन से द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस इज डेबिलिटेटेड। Lord of 7th house is debilitated and it is hemmed between malefic planets, इधर सन है इधर केतु है। लेकिन मार्स तो डेबिलिटेड भी है खुद भी, तो वो मैलेफिक नहीं आ गया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि डेबिलिटेटेड तो है ही है, बट उसके अलावा इट इज हेम्ड विद ऑल मैलेफिक्स आल्सो। आप ये देखिए सैटर्न इसको देख रहा है, राहु भी इसको देख रहा है, केतु इसको देख रहा है, तो मैलेफिक का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर बहुत ज्यादा है। सर और डेबिलेशन कैंसिल भी नहीं हो रहा है। हाँ डेबिलिटेशन कैंसिल भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। और वैसे भी व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद ऑल मैलिफिक्स, यहाँ पर आप मंगल को देखिए, पहले तो नीच का हो गया, फिर इट हैज एसोसिएशन ऑफ ऑल मैलिफिक्स। एक भी मैलिफिक तो ऐसा नहीं है जिसके एसोसिएशन नहीं है इसके साथ, तो अगेन इट्स वेरी डैमेजिंग। एंड नाउ क्वेश्चन इज अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। हाउ विल यू सी द डोमेस्टिक वायलेंस? 6:8 So 4th house
could be afflicted. Fourth house, sir. Yeah, naturally, fourth house will play a very important role. जब हम डोमेस्टिक पीस की बात करते हैं, because फोर्थ हाउस से हम डोमेस्टिक कंफर्ट देखते हैं, डोमेस्टिक पीस देखते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस है, इसका मतलब डिस्टरबेंस है वहां पर। तो फोर्थ हाउस की क्या पोजीशन है यहाँ पर? राहु केतु एक्सेस हो गया। सर फोर्थ का लॉर्ड इवन सन इज अफ्लिक्टेड बाय मेलेफिक्स। जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है सन, that is also afflicted. पहले तो फोर्थ हाउस में केतु इज पॉजिटिव, देयर इज नो अदर बेनिफिक इन्फ्लुएंस, फर्स्ट थिंग। एंड यू सी द लॉर्ड अगेन, लाइक जुपिटर, सन इज आल्सो अफ्लिक्टेड विद ऑल मेलेफिक्स। बट जुपिटर मर्करी दो बेनिफिक्स हो गए और दो मेलिफिक्स। मेलेफिक तो दो ये नहीं तो है, मेलेफिक ज्यादा है। ये सैटर्न भी है, राहु भी है, मार्स भी इधर है, तो ऑल मेलेफिक्स का इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। और जुपिटर इटसेल्फ इज ए वीक प्लैनेट, जुपिटर स्ट्रांग नहीं है। तो हम कहेंगे राहु कि की एस्पेक्ट भी आ रही है। हाँ, हम यही कहेंगे कि मेलेफिक का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। और जब देखिए किसी भी हाउस के ऊपर सन सैटर्न राहु का जब एसोसिएशन हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये तीनों सेपरेटिंग टेंडेंसी वाले प्लैनेट्स हैं। उस हाउस के सिग्निफिकेशन से हमको सेपरेट करते हैं, मतलब जो डोमेस्टिक पीस है वो हमको नहीं मिलेगी। तो तीनों का इन्फ्लुएंस है, सन सैटर्न राहु तीनों का इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, जो है फोर्थ हाउस के ऊपर। सो दैट इज रियली बैड एक्चुअली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। और पर्टिकुलरली जुपिटर आपने देखा कि बहुत वीक है, और जो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है वो वीक है, और जो फोर्थ हाउस है वो भी एकदम से काफी अफ्लिक्टेड है। बट लेट अस सी इन द नवांश। नवांश में क्या पोजीशन? तो जुपिटर 8th में, लग्न का लॉर्ड भी है, और मरकरी 12th हाउस में। मरकरी 12th में है। बताइए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नवांश? सर लेकिन इसमें मून अपने साइन में है, तो मून स्ट्रांग नहीं हो गया। और देखिए, जुपिटर आप आगे बढ़ जाते हैं। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, कि सबसे पहले हमें मैरिटल हैप्पीनेस देखना है, तो लग्न ऑफ द D9 शुड बी स्ट्रांग। राइट सर, दैट इज द प्री रिक्विजिट। तो नो सर, यहाँ पर अगर हम देखें कि लग्न की क्या पोजीशन है, सर मैरिटल हैप्पीनेस तो नहीं मिलेगी क्योंकि जुपिटर 8th में चला गया, वो भी राहु और के साथ में राहु के साथ, और सैटर्न भी देख रहा सर। सैटर्न भी देख रहा है उसको। लग्न लॉर्ड इज इन ए रियली बैड पोजीशन इन दिस केस। 8th हाउस में प्लेसमेंट हुआ जुपिटर का, और उसके साथ राहु है, और शनि उसको देख रहा है। तो ये लॉर्ड इसकी पोजीशन खराब हो गई। अगर हम इसको लग्न को ही माने, तो लग्न की क्या पोजीशन है? लग्न लॉर्ड भी सर 8th हाउस में है। वो तो देख लिया हमने, जुपिटर देख लिया। बाकी अगर यहाँ देखें प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स के हिसाब से, तो ये क्या पोजीशन है यहाँ पर? सर ये 6:8 बन गया ना। किससे? सर ये जुपिटर से। सैटर्न और मतलब सैटर्न और राहु की जो एस्पेक्ट है वो सेकंड पे और 12th पे पड़ रही है, तो उनके बीच हैम्ड हो गया। हाँ, ये देखिए मार्स का, देखिए मार्स सेकंड हाउस को देख रहा है, सैटर्न इसको देख रहा है, और राहु खैर वो केतु है ही ऑलरेडी, तो इट इज हैम्ड आल्सो बिटवीन मेलेफिक्स लग्न। तो सपोर्ट कहीं से भी नहीं है। लग्न भी जो D9 चार्ट में है वो वीक है। जुपिटर इज आल्सो वेरी वीक प्लैनेट इन बोथ लग्न एज वेल एज इन द नवांश चार्ट। तो मैरिटल हैप्पीनेस तो है ही नहीं, मैरिटल हैप्पीनेस तो नहीं इंडिकेटेड है। बट क्वेश्चन है कि व्हाट शी इज आस्किंग, व्हेन द थिंग्स विल सेटल डाउन, whether the things will settle down or not, and when. That is the question. Uncle, can you also see violence in the horoscope? मतलब happiness to unhappiness तो एक बात हुई, पर violence is another extreme. हाँ, वो भी दिखता है क्या? देखिए, जब when fourth house is afflicted with all malefics, then definitely there is a possibility of in the present case it's a domestic violence only.
So that possibility is always there, and it's afflicted with all malefics. And rather, you can say it's afflicted with all malefics. So this is the worst position. अब जब कोई भी इस type का होगा, जब सारा all malefics से afflicted होगा, तो naturally that house becomes the worst house. And Understood. Jupiter should also favor सर because इसमें जैसे mainly मार्स डेबिलेटेड है, क्या चीज? मार्स डेबिलेटेड है जी और डेबिलिएशन में मार्स जो है कि वो आपको मतलब क्या कहना चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी देके मतलब गलत डिसीजन लेना या खुद से भी कई बार हाथापाई शुरू कर देना, इस तरह की वही भी नेचर देखिए, देता है। seventh house is what? Seventh house is your spouse. Yeah. So that indicates the character of the spouse. आप ये बताइए मुझे कि अगर लग्न में किसी का मंगल नीच का है, so what will be the nature of that person? लड़ाई Aggressive, झगड़ा ये करना सर, aggressive है, Aggressive. हाँ। very aggressive, He can't violent, be aggressive. इससे नीच का है. डरपोक जोश समझे। नहीं, मैं डरपोक टाइप का, डरपोक नहीं courageous होता. नहीं है। आपने Warrior लोग देखे type होंगे कि डरपोक नहीं होगा, वो वो झगड़ालू होगा, वो गलत काम कुछ करके कर नहीं आपको पाते हैं, वो पनिशमेंट बिल्कुल ही बेकार होते हैं, बड़बड़ करते रहते हैं, गाली देना शुरू कर देंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे अपने आप से, He can also be in army, ना? उड़ते रहते. आदमी तो जब होता है, जब ये एग्जॉल्टेड होता है, ये अच्छा होता है. एग्जॉल्टेड होता है या नीच का प्लेसमेंट तो मंगल अच्छी का जगह, आदमी लेकिन आदमी में नहीं जाएगा. बट सर नवांश में तो मार्स उच्च का हो गया, तो ये न्यूट्रल नहीं हो जाएगा? नहीं, नीच का है एंड एफिलिक्टेड विद ऑल मैलिफिक्स, तो बेसिक स्ट्रेंथ उसकी बहुत कम है. नो सर वो कह रहे हैं कि नवमांश में नवांश उसका में होगा। नीच है। नवांश में उच्च का हो गया डेफिनेटली, तो थोड़ा सा उसकी पॉजिटिव होता है, बट इट इज सो एफ्लिक्टेड ऑलरेडी. मैंने कहा लेकिन कि बट सर यहाँ पे मार्स और वीनस दोबारा से कंजंक्ट ही हैं। हाँ वो ठीक है, वो तो खैर उससे फर्क नहीं पड़ता. और मंगल नीच का है तो ऐसा नहीं कि वो वीनस को भी बहुत खराब करेगा, वो एनर्जी क्या देगा उसमें. तो कोई भी मतलब पॉजिटिव साइन भी तो होना चाहिए ना, कुछ तो सेविंग ग्रेस होना चाहिए. सर और- एक क्वेश्चन है, जी, अगर यहाँ पे जुपिटर स्ट्रांग होता तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती क्या? प्रॉब्लम क्यों आएगी फिर? अगर शादी का कारक ही स्ट्रांग है तो व्हाई दिस प्रॉब्लम्स विल कम क्योंकि यहाँ पे ऑल मेलेफिक का इन्फ्लुएंस है, इसीलिए ना. वही मैं Malefic- कह रहा हूँ कि इस ऑलरेडी एफ्लिक्टेड, इट्स अ वीक प्लैनेट. तो नहीं, ये एफ्लिक्टेड होता और जुपिटर स्ट्रांग होता तब उसके क्या रिजल्ट्स होते? फिर भी वीक हो जाता, फिर उसके हो सकता है कि थोड़ा सा बचाव हाँ। हो जाता, मार पीट करके अपना फिर भी चलता रहता है काम. हम्म। बट यहाँ तो जुपिटर is obviously main कारक for the marriage, and particularly in the case of female, Jupiter plays a very important role. और नवांश में भी जुपिटर की पोजीशन बहुत खराब है. नवांश का लग्न भी बहुत वीक है और फोर्थ हाउस भी आप देख रहे हैं, फोर्थ हाउस भी बहुत वीक है यहाँ पर. तो किसी तरह से कहीं भी कोई ऐसा सेविंग ग्रेस नजर नहीं आता जिससे कि लगे कि मतलब कुछ ठीक हो जाएगा. सर अगर इनकी कुछ सेकंड मैरिज का वो हम देखना चाहें कि सेकंड वाली ठीक होगी या नहीं, कैसे वो- देखेंगे वो आप? भी नहीं सही चलेगी। सेकंड सर मैरिज जब है ही नहीं डोमेस्टिक पीस, कितनी कर लो शादी, फिर कहाँ से देखिए, मिलेगी? सेकंड मैरिज हम देखते हैं सेकंड हाउस से, बिकॉज दैट इज 8th फ्रॉम द 7th हाउस. 8th फ्रॉम द बट सर वो भी मेलेफिक से एफ्लिक्टेड वो है। तो वही तो सारी प्रॉब्लम है कि सारा बहुत Right. ज्यादा एफ्लिक्शन है. सबसे ज्यादा एफ्लिक्टेड तो यही हाउस है, तो सेकंड मैरिज भी कहाँ कराएगा वो? सर जेंट्स इन्हें में आपने जुपिटर थर्ड की रेमेडी दे सकते हैं। हाँ, रेमेडीज अभी देखेंगे. पहले ये बताइए कि whether the things will settle down and when. अभी जुपिटर मरकरी पीरियड चल रहा है जुपिटर मरकरी सैटर्न और जुपिटर नवांश में 8th हाउस में है, तो वैसी प्रॉब्लम तो है ही शादी में. नहीं, वो तो देख लिया हमने, प्रॉब्लम है. क्वेश्चन इज कि whether जुपिटर the तो things afflicted है ही। जुपिटर वीनस का फ्रेंडली रिलेशनशिप है या एनिमी रिलेशनशिप है? मैं कंफ्यूज हो रही हूँ. एनिमी किसका? है. एनिमी है ना जुपिटर वीनस? यस, एनिमी. एंड जुपिटर मर्करी इज आल्सो एनिमी.
बट सर मरकरी तो मून और मार्स का है एनिमी, अदरवाइज तो वो फ्रेंडली है सबके साथ। नहीं नहीं, जुपिटर के मर्करी जो न्यूट्रल है ना? जुपिटर के जो एनिमी हैं दे आर मरकरी एंड वीनस, and Jupiter is placed in the sign of Mercury, which is the enemy of Jupiter. एनिमी साइन। सर एक्चुअली ट्रांजिट में अभी अनिल जी 7, वीनस तो 8, 12th हाउस 9 में उच्च का हो जाता है। तीनों ही हाँ हाउस। जी, वीनस तो 12th हाउस में उच्च का हो जाता है, एनिमी 12th साइन में। हाँ 12th साइन में जी तो एनिमी थोड़ी हुआ फिर वो। नहीं, वो तो अलग देखिए वो चीज तो है। लग्न चार्ट में होता है। वो जो परमानेंट फ्रेंडशिप है उसमें जो जुपिटर के एनिमीज हैं दे आर मरकरी एंड वीनस। ओके दैट एक्सॉल्टेशन उनका का तो होना, दैट इज अ डिफरेंट पीरियड रीजन। कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा है। सर 25 जब तक ये Venus। मार्स मेष साइन में है अप्रैल तक, मिड अप्रैल तक, तब तक में भी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद क्या पता सॉल्यूशन निकल जाए। हाँ वही देखिए, दशाएं वगैरह के हिसाब से देखिए कि सॉल्यूशन निकलने के चांसेस कब हैं। सर एक्चुअली ट्रांजिट में 7th हाउस में केतु है और 9th हाउस में सैटर्न है, और ये मतलब तीनों ही अफ्लिक्टेड हो गए 7th 8th 9th हाउस। तो ट्रांजिट देखिए अभी तो जो दशा चल रही है वो जुपिटर मरकरी की चल रही है, प्रत्यंतर सैटर्न का। इसी केस में मैरिज हुई, पहले इसी टाइम में मैरिज हुई और इसी टाइम में ये प्रॉब्लम हुई सारी की सारी। और जैसा आप देख रहे हैं कि जुपिटर मरकरी दोनों ही बैडली अफ्लिक्टेड है यहाँ पर जो है, तो दैट वाज द रॉन्ग टाइम फॉर गेटिंग मैरिड। पहली चीज तो ये है, ऐसे टाइम में जब आप मैरिज को किसी का एडवाइस करें तो देख लीजिए कि टाइम वाइम सही चल रहा है नहीं चल रहा है। आई हैव सीन नंबर ऑफ हॉरोस्कोप्स की प्लैनेट की पोजीशन जैसे 2 हॉरोस्कोप हैं बिल्कुल सेम है, एक की गलत टाइम पे मैरिज हुई, एक की ठीक टाइम पे मैरिज हुई। गलत टाइम पे मैरिज होती है तो फिर वो प्रॉब्लम उसमें आ जाती है। तो ये जुपिटर मरकरी के पीरियड में मैरिज हुई है और दोनों ही बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है यहाँ पर जो है, तो ये दैट वाज नॉट द राइट टाइम फॉर गेटिंग मैरिड एक्चुअली, पहली चीज। फिर दूसरा, ये जो अभी पीरियड चलेगा जुलाई 21 तक, उसके बाद केतु का पीरियड शुरू हो जाएगा। केतु विल नॉट सपोर्ट एनीथिंग, बट जुपिटर वीनस का जब पीरियड आएगा दिस पीरियड, तो उसमें आप 2 चीजें देखेंगे कि वीनस इज द लॉर्ड ऑफ लग्ना एंड इट इज प्लेस्ड इन द उपाचय स्थान। सो लॉर्ड ऑफ लग्ना एंड प्लेस्ड इन द उपाचय स्थान, पहली चीज। और जुपिटर वीनस जो नवांश में है, यहाँ भी वीनस की पोजीशन ठीक है, मतलब इट्स नॉट बैड एक्चुअली। अगर यहाँ देखेंगे तो वीनस इज प्लेस्ड इन द 11th हाउस, तो उस टाइम लगता है कि आपस में जैसे म्यूचुअल सेटलमेंट होता है उस टाइप की सिचुएशन होगी, क्योंकि ऐसा कोई वो नहीं है कि कोर्ट वोर्ट से बहुत कुछ मिल जाएगा, बट यही है कि मुझे लगता है कि जब ये जुपिटर वीनस का पीरियड होगा उस टाइम कुछ ना कुछ म्यूचुअल सेटलमेंट के थ्रू जो है सेटलमेंट होगा, अदरवाइज तो और कोई साधन नहीं लगता। सर इसमें डिवोर्स के चांसेस तो कम दिख रहे हैं ना, बिकॉज 8th हाउस को जुपिटर खुद देख रहा है, मरकरी बेनिफिक है वो देख रहा है। जुपिटर अपने आप ही अफ्लिक्टेड है बहुत ज्यादा। सर लेकिन सैटर्न उसको प्रोटेक्ट करता है जिस हाउस में होता है, और सैटर्न कारक भी है 8th हाउस का, तो डिवोर्स के चांसेस तो कम। कारक लॉन्गेविटी का है। ओके सर। बट लॉर्ड इज अफ्लिक्टेड विद ऑल मैलिफिक्स आल्सो। सर जुपिटर केतु की तो दशा अगर फिर मैं से हम देखते बोल हैं, सकते हैं कि डिवोर्स भी हो सकता है। हाँ डिवोर्स तो होगा ही, क्योंकि सब ये लग्न आपका नवांश चार्ट आप देख रहे हो ना, नवांश चार्ट में लग्न बहुत वीक है तो मैरिटल हैप्पीनेस तो नहीं है। जब मैरिटल हैप्पीनेस नहीं है तो नेचुरली अब ये स्टेज आ चुकी है कि ऑलरेडी शी हैज फाइल्ड ए केस, तो कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता ऐसे पीरियड में। और इसके हिसाब से ये लगता है कि जब जुपिटर वीनस का पीरियड होगा नेक्स्ट ईयर मिडिल के बाद, और उस टाइम ये जुपिटर भी यहाँ पर आ जाएगा 12th साइन में, क्योंकि अभी चेंज हो रहा है 11th साइन में, तो नेक्स्ट ईयर या नहीं सर 11th में आएगा 10th। नहीं 11th में तो अभी आ जाएगा 6 अप्रैल को, फिर 22 में जाके तो यहाँ पर आएगा 1 नंबर में, या जब 2 नंबर में आएगा जब ये सेटलमेंट होगा जुपिटर। अगर जुपिटर केतु की दशा देखी जाए तो जुपिटर 10वीं राशि से देखेगा, जुपिटर अपने नेटल को देखेगा, और केतु तब आ जाएगा लिब्रा में आ जाएगा 2021 में, और केतु भी जुपिटर को देखेगा।
केतु बेसिकली सेपरेटिंग प्लेनेट है, तो उस नहीं टाइम केतु नहीं, केतु इज नॉट ए सेपरेटिंग प्लैनेट। राहु अगर होता फिर तो देखिए राहु इज ए सेपरेटिंग प्लैनेट, बट केतु इज नॉट ए सेपरेटिंग प्लैनेट। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिए कि इस टाइप की चीजों में केतु कोई हेल्प नहीं करेगा, इज अनकंसर्न्ड विद दिस एस्पेक्ट। ये तो मोक्ष का प्लैनेट है, कोई धर्म वरम की बात होती तो चलो ठीक था, बट इन चीजों में केतु का कोई हेल्प नहीं मिलता कभी भी जो है। पर जुपिटर वीनस तो सर वैसे भी 212 का रिलेशन हो जाएगा, तब भी हो जाएगा उस टाइम पे काम। हाँ हाँ हो सकता है, उसमें क्या हो गया। ये तो सर हम मतलब म्यूचुअल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, क्या मतलब जब हम देख सकते हैं इसमें डिवोर्स के ही चांसेस हैं, तो मतलब हम क्या किस तरह की सेटलमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सेटलमेंट मींस कि शी हैज फाइल्ड ए केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, तो नेचुरली कुछ ना कुछ म्यूचुअल सेटलमेंट होके दे विल गेट डाइवोर्स, दैट्स ऑल। हाँ वही डाइवोर्स हो जाएगा और बिल्कुल। मे बी सम कॉम्पेंसेशन टाइप बस मिल बस जाए बस बस वो something। म्यूचुअल सेटलमेंट के थ्रू जो भी कंपनसेशन मिलेगा वो भी बहुत नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मिलेगा, बट ये है कि वो सेटलमेंट हो जाएगा, बस यही है। सर कोई जया जी, रेमेडी एडवाइजेबल है इसके इसमें? कोई रेमेडी है सर, कोई रेमेडी एडवाइजेबल है? देखिए सबसे पहले तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं जुपिटर को, और दूसरा फिर अगर ये मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करे तो चलेगा। मर्क्यूरी मरकरी तो अपने साइन में है, मरकरी से कोई रोल नहीं है ज्यादा इस समय जो है मरकरी का जो है, उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करने से इफेक्टिव नहीं होगा। नहीं इस समय मरकरी का रोल नहीं है ना कोई। मैरिज की हम बात कर रहे हैं, तो मैरिज में बेसिकली जुपिटर स्ट्रांग हो, और ये जो 7th हाउस का लॉर्ड मंगल है, मंगल और शनि जो जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं या मंगल शनिवार के दिन, तो उससे मंगल और शनि दोनों ही शांत हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो जुपिटर के लिए क्या केले की पूजा या क्या? हाँ देखिए जुपिटर के लिए हम लोग दान भी कर सकते हैं, जैसे कि पीली चीज का दान करना है, या किसी भी गुरु की पूजा, गुरु में साईं बाबा जैसे लोग पूजा करते हैं थर्सडे के दिन बहुत ज्यादा, तो वो भी फायदेमंद हो सकता है जी। तो उस टाइप के उपाय करेंगे तो कुछ राहत मिलेगी, बट जो जहां तक सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी है वो तो जुपिटर वीनस के पीरियड में ही नजर आती है। मतलब डाइवोर्स होगा और कुछ कंपनसेशन मिल जाएगा, बस और वो भी म्यूचुअल सेटलमेंट के थ्रू जो है वो मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी 6th हाउस का भी लॉर्ड है ये वीनस, तो वो लिटिगेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे लग रहा है कि उस टाइम जो है ना कुछ हो जाना चाहिए। जुपिटर वीनस 212 में है तो कंपनसेशन तो ज्यादा नहीं मिलेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि कंपनसेशन ज्यादा नहीं मिलेगा, बट ये है कि सेटलमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। सर इसमें हम फिर एडवाइस फर्दर क्या करेंगे सेकंड मैरिज के लिए? देखिए सेकंड मैरिज मैंने बताया ना, इस हाउस से देखते हैं हम, सेकंड हाउस से, और सेकंड हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, इसका मतलब सेकंड मैरिज भी होगी तो वो भी सक्सेसफुल नहीं होगी। सर अगर ऐसे बाय चांस कोई कुंडली मिल जाए जिसकी बहुत अच्छा डोमेस्टिक पीस है कुंडली में लड़के की, तो फिर थोड़ा चल सकता है ना? नहीं, एक बात ये ध्यान रखिए कि मून जो है वो केमद्रुम योग में है, इसका क्या मतलब है? खुद का ही माइंड ठीक नहीं होगा। हाँ वो मतलब वो उस टाइप की सिचुएशन हो ही नहीं सकती, बिकॉज खुद पर्सन भी तो अपने आप को एडजस्ट करने को तैयार हो या कुछ तो सोचने को तैयार हो ना, वो उसके में पॉजिटिव थिंकिंग आ ही नहीं सकती कभी भी जो है। मून इज नॉट वर्किंग एट ऑल। सर जो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं कि पेड़ से शादी कर दो या कुछ, वो सब कितने सक्सेसफुल होते हैं? दे आर ऑल सिंबॉलिक, उससे कुछ नहीं होता है। ओके सर, जरूरी नहीं है सेकंड मैरिज। आपने थर्ड मैरिज का बताया था, किस हाउस से देखते हैं? पार्डन? आपने थर्ड हाउस का वो थर्ड मैरिज का बताया था, वो किस हाउस से देखते हैं? देखिए सेकंड मैरिज हम इस हाउस से देखेंगे, बिकॉज दिस इज 8th। हाँ थर्ड भी हम इसी से देखेंगे। अच्छा हाँ क्योंकि एक किसी की हुई है, थर्ड मैरिज हुई है, तो हाँ वो थे जी, उसी से देखेंगे वो बेसिकली। सर इसका करियर कुछ बनेगा, इसका करियर कैसा रहेगा? करियर के हिसाब से
ठीक लगता है सर तो क्योंकि अच्छा है, शनि उसी को देख रहा है सर। हाँ शनि देख 10th रहा है, house। जुपिटर भी देख रहा है उस 10th हाउस को, तो इफ शी वांट टू डू समथिंग शी कैन डू इट एक्चुअली। तो इनका जया जी बताएंगी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है क्या नहीं। तो एमटेक है, पीएचडी परसुइंग है, एमटेक। हाँ तो क्वालिफिकेशन तो प्रोफेशनली तो ठीक ही लगता है। और सर राहु 11th हाउस में मतलब 10th हाउस में बैठे हैं इट्स वेरी गुड एक्चुअली, उपाध्याय स्थान में राहु है, इट्स वेरी अच्छा गुड। रहेगा, हाँ हाँ, काफी अच्छा शनि योग रहेगा। कारक है, शनि देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है 10th हाउस को, तो प्रोफेशनली तो शी विल गेन, प्रोफेशनली तो अच्छा हॉरोस्कोप है, प्रोफेशनली अच्छा है। अंकल और प्रोफेशनली गेन फिर होगा, लेकिन जुपिटर वीक है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा फिर? नहीं, जो हम इसकी प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, अब 10th हाउस की बात कर रहे हैं। 10th हाउस को जुपिटर देख रहा है, तो aspect on the 10th house is good. And जुपिटर अगर वीक है तो उसका कुछ इम्पैक्ट होगा? weak है because it is afflicted, but as far as this house is concerned, this is not afflicted. This is aspected only by Jupiter, not by other malefics. जुपिटर की एस्पेक्ट तो अच्छा इफेक्ट देती है हाँ, ना? aspect is always good. वो अपने लिए weak है, लेकिन aspect तो अच्छा है। एस्पेक्ट वो सैटर्न को भी कर रहा है और 8th हाउस को हाँ, भी। और इसको भी कर रहा है, दोनों को कर रहा है, तो प्रोफेशनली तो she will do well actually. मैं कह रहा था कि वो let us see that दशांश जुपिटर chart की also. लॉर्डशिप भी काफी खराब है। हाँ जी, जुपिटर की लॉर्डशिप खराब है। नहीं 8th और aspect 11th। नहीं, I'm talking of aspect only. नहीं, Aspect on the aspect तो 10th house. एस्पेक्ट तो 8th हाउस में भी ठीक हो गया फिर। हाँ, सैटर्न की लॉर्ड को भी देख रहा है और 10th हाउस को भी देख रहा है। सर दशमांश में भी जुपिटर 10th को देख रहा है, मून सेट उसमें बैठा हुआ है। दशमांश में देखिए पोजीशन क्या है। पहली चीज की जुपिटर लग्न 10th लॉर्ड house को। का प्लेसमेंट ठीक है, यस सर। लग्न का भी प्लेसमेंट ठीक है, कोई ऐसा मैलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, वेनस ही देख रहा है उसको। जी। और इवन अगर हम सन को भी देखें तो सन बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट इट इज एस्पेक्टेड बाय जुपिटर आल्सो, तो सन की पोजीशन भी इतनी खराब नहीं है, तो इट मींस कि प्रोफेशनली ठीक रहेगा, ठीक ठीक रहेगा। और जुपिटर आप देखिए कि इसमें केंद्र में बैठा हुआ है, लग्न का लॉर्ड है, तो जुपिटर दशा भी प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। वर्गोत्तम भी है सर जुपिटर D10 में। हाँ, यहाँ वर्गोत्तम भी हो जाता है, तो जुपिटर की दशा चल रही है। और सर 10th हाउस को देख भी रहे जुपिटर हाँ, अपने वही साइन को। केंद्र में है तो उसकी दशा में तो रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। सो मीन्स हम बोल सकते हैं सर जुपिटर में जब मून का पीरियड आएगा, आ चुका या आएगा, तो तब ज्यादा कुछ अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, अभी जुपिटर मरकरी का पीरियड चल रहा है और जुपिटर मरकरी आपस में 6-8 है। उसके बाद जुपिटर केतु का पीरियड चलेगा, केतु इज इन द 6th हाउस, और फिर उसके बाद जुपिटर वीनस का पीरियड चलेगा। दैट विल वंडरफुल फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के दोनों प्लैनेट जो है वो केंद्र में प्लेस्ड हैं D10 चार्ट में। तो और उस टाइम तक ये सेटलमेंट भी हो जाएगा, तो फिर नेचुरली मेंटली आल्सो शी विल बी फ्री, तो फिर उस टाइम ठीक हो जाएगा, प्रोफेशनली तो कम से कम अच्छा हो जाएगा। प्रोफेशनली अच्छा ही हो जाएगा सर, क्योंकि इसमें D10 में 7th का लॉर्ड, वो 8th का लॉर्ड 7th में। नहीं, वो प्रोफेशनली वैसे नहीं देखते D10 चार्ट को। D10 चार्ट में हमने कहा था कि जो प्लैनेट यहाँ पर प्लेस्ड है 10th हाउस में, पहला वो रोल होता है उनका, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। देन नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंस इज द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस इन D10, and third in importance is the planet aspecting the lord of 10th house in D10, and next was all planets placed in this kendras. They play an important role as far as profession is concerned. और सर इसमें ये देखा जाएगा कि जुपिटर और वीनस की जो दशा चल रही हुई है, उन दोनों का डिस्पोजिटर 9th हाउस में जाके बैठ गया, तो भी D10 में ये देख सकते हैं। वो चीज देखते ही नहीं है हम लोग, डिस्पोजिटर को इस पे नहीं देखना, इसमें नहीं देखते वो डिस्पोजिटर। इसमें जो प्लैनेट केंद्र में प्लेस्ड हैं, they really become very important from profession point of view. They give you very good status, substantial gains. अंकल पहली चीज क्या बोली आपने, प्लीज कैन यू रिपीट दैट फॉर D10? देखिए D10 चार्ट में पहली चीज आपको लग्न देखना है कि लग्न स्ट्रांग है या नहीं है। अगर लग्न वीक है, देन योर
फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशन इज ए वीक फाउंडेशन, फिर आप बहुत प्रोग्रेस नहीं कर सकते. And if you want to get a good status in the profession, then sun should be well placed in the D10 chart, right? तो ये दो चीजें तो prerequisite है to get a good status in the profession. Now, किस planet की दशा में जो gains होते हैं profession में, that we said, firstly, the planet placed in the 10th house in D10 chart. जैसे यहाँ पर moon placed है यहाँ पर, तो जब इस planet की दशा operate होगी, then you get the substantial gains in the profession. पहली चीज. Secondly, इसके बाद next in importance is the Lord of 10th house, that is Jupiter in this case. So when dasha of Jupiter operate, then you again have a substantial gain in the profession. Then all planet which has an aspect on the Lord of 10th house. Lord of 10th house is Jupiter here. So any planet aspecting this house, for example, Rahu, let us say Rahu in this case, or moon also. So during these 2 periods also, professionally you will do well actually. And lastly was the role of all planets which are placed in the Kendra in the D10 chart. So it means all these planets, Moon, Venus, Jupiter, they are important from profession point of view. Religion planet aspecting 10th house वो important नहीं है? No. देखिए पहला है Lord of 10th house. Most important planet. उसकी जब दशा ऑपरेट होगी तो all gains will surpass your expectations. Next in importance is the Lord of 10th house. Third is all planet aspecting the Lord of 10th house. And next is all planet posited in the Kendra in the D10 chart. ये planet important होते हैं profession के point of view से. ठीक है. So let's go ahead actually. Next horoscope. जया जी और तो कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर, थैंक यू सर, नमस्कार. So let's go for the next horoscope. इसमें जो पूछा है first question is कि when this person can have its own first asset in the form of property. Second is the person is already working, but what is the sole profession which can be explored if a person is not happy with current job status. So ये horoscope है. Let us first see the all aspects. Degree विग्री इसमें निकालना पड़ेगा. एक मिनट. ये है. So these are the degrees of the each planet. यहाँ आप क्या देख रहे हैं? सर मार्स डेबिलिएटेड है, मून डेबिलिएटेड है, वीक है, मरकरी पहले मरकरी 0 डिग्री पे. Let's see the degrees first. मरकरी वीक है सर. मरकरी 0 डिग्री है और मरकरी is very close to the sun also. 3-4 डिग्री का डिफरेंस है इसमें. यहाँ देख रहे हैं ना, ये लियो में 27 डिग्री समझ लीजिए और ये वर्गो में 0 डिग्री का है. तो मरकरी इसमें हम कहेंगे कंबस्ट है बिकॉज इट्स वेरी नियर टू द सन एक्चुअली. ठीक है. दूसरा, इवन वीनस इफ यू सी इट इज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ डिग्रीज. 29-38 है तो भी बिल्कुल लास्ट में है ये वीनस. और इसको भी देखें, सन इज आल्सो 27, मून इज 25, मार्स इज अगेन 27, मरकरी इज 0, जुपिटर ठीक है 11 डिग्री का है और राहु केतु भी 27. राहु केतु तो चलो ठीक है, बट इनका वो देखिए स्ट्रेंथ प्लैनेट्स की शट बल वगैरह में क्या पोजीशन है. मून इज स्ट्रांग. Moon is most. Moon is okay. This is okay. This is okay. This is okay. जुपिटर ही है जो कि रिक्वायरमेंट से कम है और बाकी सारे प्लैनेट रिक्वायरमेंट से ज्यादा हैं. बट जुपिटर में जो है वो थोड़ा सा कम है, कम देन द रिक्वायर्ड एक्चुअली. और इवन मरकरी भी ठीक है, 7.9 है. सर ये मेल है फीमेल? फीमेल.
बाकी सन अपने घर का इसमें मरकरी रश्मि किरण भी 21.33 है। अब लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पॉजिटिव योगास। कौन कौन से पॉजिटिव योग हैं इस हॉरोस्कोप में? सन एग्जॉल्टेशन में, सैटर्न एग्जॉल्टेशन में सर। सैटर्न जो है वो एग्जॉल्टेड है। एग्जॉल्टेड और केंद्रा में मरकरी भी एग्जॉल्टेड है एक सर। मिनट धीरे धीरे। सैटर्न अपने एग्जॉल्टेड है, केंद्र में प्लेस्ड है, तो कौन सा योग बनता है ये? सस महापुरुष। हाँ, सस महापुरुष योग, वेरी गुड। तो सस महापुरुष योग बन गया पहली चीज। और गज बताइए। केसरी भी है इसमें। गज केसरी है, मून नीच मून का और है। जुपिटर सन अपने साइन में है हाँ, मून और जुपिटर दोनों एक साथ प्लेस्ड हैं, तो सर, पर मून डेबिलिटेटेड है। बट सर परिवर्तन योग भी बन रहा है। एक एक करके ना आप पहले गज केसरी योग को डिस्कस कर लीजिए। गज केसरी योग है, बट ये कह रहे हैं कि मून डेबिलिटेटेड है, तो नेचुरली थोड़ा वीक हो जाएगा, बट इट इज इन ए गुड हाउस। दिस इज इन द हाउस ऑफ प्रोस्पेरिटी, तो वीक है डेफिनेटली। जो सर फर्स्ट हाउस के साथ परिवर्तन योग भी बन रहा है। हाँ, और जुपिटर हमने देखा कि उसका लगन का लॉर्ड हो गया उसमें। जुपिटर भी वीक है और मून भी, जैसे आप देख रहे हैं कि डेबिलिटेटेड है, तो गज केसरी योग तो है लेकिन इसे वीक योग, ठीक है। और बताइए। 1 और 5 में एक्सचेंज है। 1 और 5 में वंडरफुल। लेकिन सर मार्स भी डेबिलिटेटेड है। एक मिनट, मून और मार्स का एक्सचेंज है। अभी हम पॉजिटिव पॉइंट की बात कर रहे हैं। मून और मार्स का एक्सचेंज है, तो इट्स वेरी गुड राजयोगा। मरकरी एग्जॉल्टेड है सर। 9th का लॉर्ड 5th में है। सन अपने साइड में है। 9th का लॉर्ड इन द 5th हाउस, वंडरफुल। दिस इज अगेन वेरी इट्स अ गुड योगा एक्चुअली। मरकरी एग्जॉल्टेड है। सन अपने साइड में है। लग्नेश 5th हाउस में। सन जो है वो अपने साइन में है, और लग्न का लॉर्ड भी 5th हाउस में है। दैट इज अगेन ए गुड योगा। एंड 10th का लॉर्ड भी लग्न में है सर। हाँ, 10th का लॉर्ड मतलब मार्स इधर योग कारक बन गया। मार्स योग कारक है। मंगल जो है वो योग कारक है। इस लॉर्ड ऑफ क्वाड्रेंट एंड ट्राइन। सर मालव्य योग भी तो बन रहा है इसमें, क्योंकि कैसे बन रहा है? 7th का लॉर्ड केंद्र में है, राजयोग बन रहा है। 4th का लॉर्ड केंद्र में वीनस, तो मालव्य योग भी बन रहा है। नहीं, मालव कैसे बनेगा? वीनस शुड बी इन इट्स ओन साइन और इन द एक्सॉल्टेशन साइन, तभी बनेगा ना। सारे ट्राइन लॉर्ड्स ट्राइन्स में ही हैं। हाँ, सारे ट्राइन लॉर्ड ट्राइन में हैं। तो दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट्स। और कोई पॉजिटिव पॉइंट आप देखिए, कोई और मिले तो आपको। ये नवांश भी और दशांश भी आपके साथ बने हुए हैं यहाँ पर। तो वैसे तो केंद्र लॉर्ड भी सारे केंद्र यहाँ ट्राइन में है, तो इनके केंद्र और ट्राइन नवांश का लग्न भी स्ट्रॉन्ग है। Now let's talk about the negative yogas now. Mars debilitated, Moon debilitated सर। 2 planets debilitation में। सर राहु वैसे एग्जॉल्टेड है। और केतु का चांडाल योग। सर मार्स का डेबिलेशन कैंसिल हो रहा है। कैसे? सैटर्न के एस्पेक्ट से। क्यों? मून का डेबिलेशन मार्स एक्सॉल्टेड इन कैप्रिकॉर्न नहीं हो रहा है। वेरी गुड। मार्स का जो प्लैनेट है और इसका जो प्लैनेट एंड द लॉर्ड ऑफ इट्स एक्सॉल्टेशन साइन दोनों केंद्र में है, तो मार्स का जो है वो डेबिलिटेशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है। सर मून का भी डेबिलिएशन कैंसिल हो रहा है, क्योंकि जो जिस साइन में वो नीच का हो रहा है उसका लॉर्ड केंद्र में बैठा है मार्स। दोनों केंद्र में होने चाहिए। अच्छा, दोनों के। हाँ, खाली उसके लॉर्ड से नहीं हो जाएगा। नाउ नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है? राहु और केतु भी एक्सॉल्टेड होते हैं क्या? नहीं, उसको नहीं मानते। देयर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अबाउट दैट, बट नोबडी, वी डोंट कंसीडर देम एक्चुअली।
सर इसमें वो जुपिटर और केतु का वो जो बोलते हैं चंडाल योग वो बन रहा है। जुपिटर और केतु का कौन सा बोलते हैं वो? गुरु चंडाल योग। गुरु चंडाल योग। राइट, गुरु राहु होता है तो होता है ना। गुरु चांडाल योग बन रहा है। और तो वैसे गुरु चंडाल इसका बनेगा क्योंकि जुपिटर और केतु की काफी दूर की डिग्री है और बीच में मून भी है इनके। हाँ, देख लो डिस्टेंस कितना है। जुपिटर इज 10 डिग्री एंड केतु इज 26 और बीच में मून है 24 का, तो मून ज्यादा क्लोज है केतु के। हाँ, तो उतना। और वैसे भी जुपिटर हम कहेंगे कि 9th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है, तो 9th हाउस पावरफुल है, तो इसलिए वैसे भी कैंसिल हो जाता है। काल सर्प दोष भी है ना? देखिए काल सर्प योग है या नहीं है। यहाँ पर जुपिटर मरकरी केतु है। सर। केतु की डिग्री कितनी है? 26 तो नहीं बनेगा। 26 बन रहा है ना। मून कितना है? 24। जुपिटर कितना है? 10। तो काल सर्प योग बन रहा है। बन रहा है। वेरी गुड। इस काल सर्प योग इज देयर। तो ये तो एक इनका तो नेगेटिव योग हो गया। माला योग भी है। माला योग भी बन रहा है। केतु की फिर 4 ही डिग्री हुई ना। केतु तो उधर को चलेगा। नहीं चले भले ही, बट यहाँ पर इस पोजीशन इसकी यहाँ पर है 26 डिग्री पर। अभी तो उसके एक्सिस में आ गए सारे। एक्सिस में तो आ ही गया ना सारे के सारे जो है। राहु केतु की एक्सिस में आ गए सारे प्लैनेट, तो काल सर्प योग बन गया। तो ये जो सर सैटर्न और मार्स एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं। बताइए। क्योंकि नहीं होगा घर पे, कुछ डोमेस्टिक, हाँ कुछ ऐसा हो सकता प्रॉब्लम। सर क्या क्वेश्चन है इनका? सर ये बोल सकते हैं कि जैसे 7th हाउस में सन, 4th हाउस में सन एग्जॉल्टेड है, तो ये काफी लर्नेड पर्सन होंगे। नहीं, 4th हाउस में सैटर्न एग्जॉल्टेड है। इनके पास प्रॉपर्टी बहुत होगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है, मर्क्यूरी अपने को लग्न में एग्जॉल्टेड दिख रहा है, पर यहाँ पे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, तो उससे क्या हुआ? exalted planet retrograde impact positive negative? No, it's all positive. Only when planet is retrograde, it increases its strength actually. But जैसा हमने कहा कि मरकरी जो है यहाँ पर combust है, that is the main problem. Mercury is combust. सर इन पे काफी सारी प्रॉपर्टी रहेंगी, लेकिन घर का सुख नहीं मिलेगा, मतलब बाहर ज्यादा रहेंगे, अपने घर पे कम रहेंगे। लग्न की क्या पोजीशन है यहाँ पर? लग्न स्ट्रॉन्ग है, बस उसका जो लॉर्ड है वो डेबिलिटेड जुपिटर के साथ, लेकिन वो राहु केतु के गजकेसरी योग भी बना रहा है, तो मतलब थोड़ा सा। अरे आप प्लैनेट का देखिए ना, एस्पेक्ट देखिए। मार्स है वहाँ पर, मार्स और मून एक दूसरे को परिवर्तन हो रहा है इनका। सैटर्न देख रहा है, सर जुपिटर भी देख रहा है, केतु देख रहा है और जुपिटर भी देख रहा है। तो मेलेफिक्स प्लैनेट का ज्यादा इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर। और वीनस को भी अगर हम देखें तो वीनस के ऊपर भी सारा मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है। वीनस के ऊपर भी सारे मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। और अगर 4th हाउस को देखें यहाँ पर, तो इसका लॉर्ड यहाँ पर है, लेकिन अफ्लिक्टेड विद ऑल मेलेफिक्स। और 4th हाउस के ऊपर भी मंगल और शनि का एसोसिएशन है, जैसा आप बता रहे हैं कि एक दूसरे को देख रहे हैं दोनों। और इवन अगर हम इसको भी देखें, ये 7th हाउस को, तो इसके ऊपर मंगल का एस्पेक्ट है और राहु का भी एस्पेक्ट है। मंगल और राहु दोनों का एस्पेक्ट है। और 8th हाउस को देखिए, 8th हाउस के ऊपर किस किस प्लैनेट का एस्पेक्ट है? सन, मार्स का है, सन का, मार्स का एस्पेक्ट है। सन और मार्स का एस्पेक्ट है। तो क्वेश्चन ये है कि
property, when she can have her own property. तो उसमें अगर हम दशा देखें, दशा क्या चल रही है इस समय, let us see the दशा. सर प्रॉपर्टी के लिए D4 भी देखना चाहिए हमेशा. हाँ, ये दशा इस समय जो ऑपरेट हो रही है सन की दशा है, और सन सैटर्न का पीरियड चल रहा है 8 अगस्त 21 तक. सन सैटर्न का पीरियड चल रहा है. अच्छा हो गया सर. अगस्त दोनों 21 तक. मेलेफिक्स हैं लेकिन. और प्रॉपर्टी के लिए क्या? So Saturn is more powerful than Sun. तो means Saturn के results मिल सकते हैं इस दशा में. नहीं, And पहले Saturn प्रॉपर्टी is के exalted in प्रॉपर्टी के 4th पॉइंट ऑफ व्यू house. से देखिए कि जो 4th हाउस है या मार्स है, वहां पर क्या पोजीशन है. सर 4th हाउस सर में तो सैटर्न तो अच्छा है 4th हाउस में. ट्रांजिट सैटर्न भी देख रहा है 4th हाउस को, और सैटर्न खुद भी बैठा है वहां पे. और हाँ. मार्स तो वैसे ही योग कारक है. और अभी जुपिटर यहाँ पर आ जाएगा, हाँ जी. तो वो भी देखने लगेगा फिर इसको. हम्म, सैटर्न तो देख ही रहा है, फिर वो जुपिटर भी इसको देखने लगेगा. हम्म, और दशा भी जो चल रही है, मार्च सैटर्न का पीरियड चल रहा है. हम्म. मार्च सैटर्न का, सन सैटर्न. सॉरी सन सैटर्न का पीरियड चल रहा है. तो सैटर्न यहाँ पर प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा ही है. हम्म. और नेटल मार्स भी देख रहा है, मंगल उसको देख ही रहा है. तो जब जुपिटर यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर के शुरू में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ परचेजिंग द प्रॉपर्टी. इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर के शुरू में, क्योंकि उस टाइम जुपिटर भी देखेगा और ये जो सैटर्न है वो ऑलरेडी देख ही रहा है. और ये सैटर्न जो चेंज हो रहा है, ये 29 अप्रैल को चेंज हो रहा है 2022 में. तो उससे पहले मतलब नेक्स्ट ईयर आप समझ लीजिए बिगिनिंग में, उस टाइम देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग ए हाउस. सर एक बार अगर जुपिटर अगर 8th हाउस में चला गया, और मार्स तो काफी तेजी से चलता है, मार्स अगर लगन में आ गया ट्रांजिट का, और यहाँ मार्स 4th हाउस पे आ गया, तब तो मार्स भी प्रॉपर्टी दे देगा. तो मार्स तो आ जाएगा 3-4 महीने में. वो अभी एरीज में है, इसमें नहीं, जल्दी मार्स पहुंच तो जाएगा. देखिए एक्चुअली में ये मार्स तो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो ये तो ठीक है. बट जब जुपिटर का मेन रोल आएगा, ठीक है, जुपिटर यहाँ एक तो 9th हाउस का लॉर्ड भी है, और जुपिटर का प्लेसमेंट 5th हाउस में है. तो इन चीजों में तो मदद करेगा कम से कम जो है, और देखेगा भी. और शनि देख ही रहा है, तो 2 प्लैनेट ही काफी हैं अगर हम कहें कि 4th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मुझे तो उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी लगती है समवेयर इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर. सर मतलब जुपिटर जब 4th हाउस को देखता है तब प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं ऐसा? नेचुरली उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको प्रॉस्पर करेगा उस हाउस को. और खास तौर से शनि देख ही रहा है ऑलरेडी, शनि ऑलरेडी यहाँ से देख ही रहा है. ओनली थिंग इज कि जुपिटर का भी जब फेवर हो जाएगा, तो जुपिटर का जब फेवर हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है. तो उस टाइम एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बनती है. सर अगर पड़ेगा, और जुपिटर को भी ये है. हाँ, जुपिटर का भी हेल्प मिलेगी, और सैटर्न का तो मिल ही रहा है ऑलरेडी. जो मतलब सर अगर किसी केस में अगर सैटर्न नहीं होता, मतलब सैटर्न का ट्रांजिट नहीं रहता उस टाइम, तो नहीं होता, मतलब जो तब सपोर्ट नहीं मिल रहा सैटर्न का, तब सपोर्ट नहीं मिल रहा. फिर हम मतलब डिसीजन नहीं ले पाएगा तब. नहीं ले पाएगा. इट विल ऑल डिपेंड ऑन सो मेनी अदर फैक्टर. दशा वशा किसकी चल रही है, क्या है क्या नहीं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. बट सर यहाँ पे ये नहीं है सैटर्न देखता तो डिले भी कराता है. नहीं, हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, 4th हाउस की बात कर रहे हैं. हाँ, प्रॉपर्टी में ही अगर वो देखेगा तो वो प्रॉपर्टी लेने में डिले नहीं कराएगा. नहीं, डिले नहीं कराएगा वो तो, बल्कि उसको सपोर्ट करेगा. सैटर्न ऑलरेडी है वहां पर बैठा हुआ है,
और प्रॉपर्टी के मैटर में तो उसको देखेगा तो उसका फायदा ही करेगा। ओके। और प्रोफेशन की बात देखिए, प्रोफेशन में क्या पोजीशन है? लग्न वर्गोत्तम हो रहा है। 10th हाउस का लॉर्ड लगन में जाके बैठ गया है, वैसे ही योग का सिंहासन, हाँ, सर सन की सिंहासन दशा योग चल बन रही है, गया। वो इम्पोर्टेंट है प्रोफेशन के लिए। जो भी कौन सा? करंट सन की दशा है उसमें सन अच्छे गेन्स होने चाहिए, क्योंकि डी 10th हाउस में है सन। राइट, यहाँ देखिए सन एक तो अपने साइन में बैठा हुआ है, बट D10 साइन में सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली, क्योंकि 10th हाउस में मैंने कहा था कि जो भी प्लैनेट 10th हाउस में होता है तो उसकी जब दशा चलती है तो नेचुरली यू गेट ए वेरी गुड स्टेटस एक्चुअली। तो सन का ही पीरियड चल रहा है इस समय। और अगर हम देखें कि जैसे जुपिटर अभी भी देख रहा है, बट यहाँ पर जब अप्रैल में आएगा तो और स्ट्रेट अवे सन को एस्पेक्ट करेगा, तो दैट विल फर्दर हेल्प इन द प्रोफेशन। तो जो सन का पीरियड है या जो इस समय जुपिटर यहाँ पर आएगा तो उस टाइम या ऑलरेडी जो पोजीशन चल रही है वो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, मतलब पर्सन शुड गेट ए गुड स्टेटस एट दैट टाइम एक्चुअली। बट एक चीज हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लैनेट ज्यादातर वीक प्लैनेट है, डिग्री वाइज भी अगर हम देखा तो वीक है प्लैनेट एक्चुअली में, तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा स्टेटस मिलेगा, बट ठीक है, मतलब फायदा होगा इस टाइम, ये हम कह सकते हैं। और बताइए क्या देख सकते हैं इसमें? और काल सर्प योग है ही है, वो भी एक ध्यान में रखने वाली बात है। देयर सम इम्बैलेंस इन द लाइफ। क्या हो सकता है implication होता है? हाँ जी, क्या चीज? क्या implications होते हैं अंकल काल सर्प के? काल सर्प योग मींस कि one of the important aspect of the life is missing. लाइफ में सारे सुख नहीं मिलते, जो बहुत एक कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जैसे किसी के बच्चा नहीं हुआ, किसी के शादी में प्रॉब्लम हो गई, या किसी को प्रोफेशनली बहुत खराब है, किसी की हेल्थ बहुत खराब है, तो जहां पर राहु का इन्फ्लुएंस होता है तो उस हाउस से कनेक्टेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। सर इधर राहु का एस्पेक्ट भी मैटर करेगा, मींस यहाँ पे जैसे 5th हाउस को देख रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि चाइल्ड होने में प्रॉब्लम हो। हाँ, 5th को है, 7th को है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है एक्चुअली। तो वो भी अपना रोल प्ले करेगा काल सर्प योग भी जो है। बट एनीवे, दो चीजें जो हैं, जहां तक प्रॉपर्टी का सवाल है वो नेक्स्ट ईयर बिगनिंग में चांसेस हैं, और प्रोफेशनली तो अभी अच्छा रहेगा इस टाइम, जो टाइम चल रहा है वो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अच्छा समय है। ठीक है, दिस इज रियली वंडरफुल हॉरोस्कोप। किसका है? आई थिंक सर मुझे इनका नाम जानना है। क्या बता सकते हैं आप? किसका? जिनकी आपने ये रश्मि हॉरोस्कोप किरण 91। माय गॉडनेस, जस्ट सी दिस हॉरोस्कोप। जुपिटर एग्जॉल्टेड इन लग्ना। वाओ, जुपिटर है, मार्स है, सन है, सब एग्जॉल्टेड है, वीनस है। यू विल एंजॉय सर किसी किंग की है क्या? सर मुझे इनका नाम नरेंद्र मोदी की तो नहीं है। देखिए, आई थिंक दिस हैज बीन सेंट बाय मिस्टर ब्यूनो गोयल। किनकी है हॉरोस्कोप? मेरे बेटे की है। The boy is in class 12. मेरे बेटे की है। His name is दिवाकर। Wow, good. इन्होंने लिखा है to you. कि the boy is in class 12 with commerce without math
with fine art painting. He has good painting skill and interested in the same. Which field will be beneficial for him? CA, CS, BFA, designing course. How about business as a source of earning? If he does business in the future, which business will suit him and what time? We are concerned about his profession business since he carries a casual approach currently in the studies. How will his health be in the future? When will he get married and how his married life will be? पहली चीज तो ये तो सीए की कुंडली है क्योंकि सर ये क्लियरली तो दिख रहा है। मतलब मैं गवर्नमेंट जॉब में भी भगवान आईएएस वगैरह बन सकते हैं। भगवान राम की कुंडली देख रही थी, मरकरी काफी बिल्कुल हद तक असेंडेंट के मतलब बराबर है। अच्छे हैं ऐसे प्लेनेट। देखिए पहली चीज तो रश्मि किरण 91 आई एम सीइंग फर्स्ट टाइम। जी मैंने देखी है 75 के आसपास, लेकिन 91 आई एम सीइंग फर्स्ट टाइम। तो यू कैन जस्ट इमेजिन द स्टेटस ऑफ द पर्सन। 91 इज रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सन की प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखिए, रूपास देखिए, इनके सन 5 मिनिमम है, 11.4 is what he has. Sir, he can go very high in And is government. 8.3. Everything is super high. If you see the strength, so most of the planets मैं are कह in रही हूँ good ना, position. मैंने ये वाली मतलब भगवान राम की कुंडली में देखे काफी सारे ऐसे योग, सिर्फ 2-3 का फर्क है उसमें। मैं तो इस कुंडली को कई बार एनालाइज किया। नहीं देखिए, एक मिनट, सॉरी। यहाँ पर जो लेट्स स्टार्ट विद द सेम रूटीन वे, डिग्री वाइज सारे प्लैनेट ठीक है एक्सेप्ट सैटर्न। अब ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सैटर्न की डिग्री जो है वो 1 डिग्री है, और अगर हम यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ देखें तो सैटर्न इज द वीकेस्ट प्लैनेट इन दिस केस। इसकी जो 12th में बैठ के कारक हो गया। नहीं, एक मिनट, इसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत ही कम है, इट्स ओनली 4.5, जबकि आप सन की देखिए 11.4। मून इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, मरकरी भी ठीक है, बट ऑल प्लैनेट्स आर स्ट्रॉन्ग। सर यही प्रॉब्लम है, बहुत आलसी है ये। तो Saturn is a very weak planet in this case, and even if you see the position of Venus, Venus का भी जो षटबल है वो कम है, बाकी प्लैनेट का ठीक है, बट Saturn और Venus जो है, 2 प्लैनेट का षटबल कम है, और खास तौर से Saturn जो है वो बहुत कम है। Now let us say, पहला तो मार्स जो है वो एग्जॉल्टेड है और केंद्र में है, तो रोचक महापुरुष योग बन गया। हंसी योग है। दूसरा जो जुपिटर है एग्जॉल्टेड है, वो केंद्र में है। एग्जॉल्टेड है। सन भी एग्जॉल्टेड है। सन एग्जॉल्टेड है 10th हाउस में। वीनस भी एग्जॉल्टेड है सर। वीनस भी एग्जॉल्टेड है, और लग्न लॉर्ड सर ट्राइन में बैठा है। हाँ, और लग्न लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में बैठा हुआ है। एक्सचेंज भी है सर, 1st और 9th हाउस का। मून और जुपिटर का एक्सचेंज है। हाँ, जुपिटर वीनस का एक्सचेंज भी है। नो, जुपिटर एंड मून। जुपिटर एंड मून का जुपिटर एंड मून, या राइट, जुपिटर मून का एक्सचेंज भी है। और सर धर्म कर्माधिपति योग भी बन रहा है इनका। सन एंड जुपिटर 9th and 10th lord expecting each other. हाँ, दे आर एक्सपेक्टिंग ईच अदर, तो धर्म कर्माधिपति योग भी बन गया। अब विनू जी आपको क्या चाहिए इसके अलावा? सर ये पढ़ते नहीं है सर, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो उसका लाइफ इंडेक्स तो 91 है। नहीं, पढ़ाई की हम इनको यही बोलते हैं प्रोफेशन में कैसे आप अच्छा कर पाओगे, क्योंकि 4 कारक हैं और सैटर्न स्टार्ट कराता है आपको काम। अगर आप इनिशिएटिव नहीं लोगे तो बात कैसे बनेगी? इसको पढ़ने की जरूरत ही क्या है, इसको सब कुछ मिल जाएगा अपने आप। इनका सन इतना स्ट्रांग है, अपने आप ही बैठ के खाएगा। इन्हें पापा तो छोड़ रहे हैं इनके, वो तो हम कहते हैं इनको, लेकिन गलत है ना, कर्मठ भी होना बहुत जरूरी है। उसे जरूरत नहीं, आप इन्हें जो भी ये पेंटिंग वगैरह करते हैं उसी में ही निकालिए, उसी में ये अपना विदेशों तक में नाम कमा सकते हैं। 5th हाउस कैसा है जो तो हम देख सकते हैं कि क्रिएटिविटी कैसी है? जुपिटर देख रहा है उसको,
और वो This Lord is exalted in the Kendra, again Rajyog. Mars is योग कारक also. इससे strong Mars क्या होगा? Right. जुपिटर भी देख रहा है. ये तो पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं. नहीं, लगन पे या लगन लॉर्ड पे ऑस्पेक्ट नहीं है राहु का. सर हम ये कह सकते हैं कि इन्हें फॉरेन से ज्यादा अर्निंग होगी. हैं जी? फॉरेन से अर्निंग काफी रहेगी. क्यों? नहीं, 4th हाउस वो होना चाहिए अफ्लिक्टेड. नहीं, यहाँ पर जो 11th हाउस का लॉर्ड है, दैट इज इन द 9th हाउस. So that indicates earning from abroad. That indicates earning from abroad. और Venus भी केंद्र का लॉर्ड है, ट्राइन में बैठा हुआ है. तो उच्च का है. ये भी एक अच्छा योग है, बहुत अच्छा योग है. और जुपिटर जो देख रहा है 9th हाउस को, अपना साइन भी है वो. तो जुपिटर का एस्पेक्ट भी बहुत अच्छा है इसके ऊपर जो है. सर इसमें अगर कुंडली में देखना हो व्हाट द पर्सन विल डू प्रोफेशनली, वो एग्जैक्टली कैसे देखेंगे? बताइए कैसे करेंगे? तो वही हमने पूछा है सर. सर मैं अगर कहूँ तो जो बेसिकली कहते हैं जो असेंडेंट डिग्री के सबसे ज्यादा पास वाला हो, दैट प्लैनेट बेसिकली डिसाइड्स योर करियर और एजुकेशन. जो इसमें मरकरी है, और मरकरी बेसिकली लेता है कॉमर्स में, मैथ्स में लेता है. इन्होंने बोला कि इन्होंने मैथ्स नहीं लिया है. जुपिटर कॉमर्स का कारक है, जुपिटर बायोलॉजी का भी कारक है, लेकिन जुपिटर 9th हाउस को भी देख रहा है और अपनी राशि को देख रहा है. तो मेरे हिसाब से तो इनको सीए का बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि मरकरी की ही दशा चल रही है इनकी. मरकरी की दशा में इनकी एजुकेशन हो रही है. तो आई डोंट नो इन्होंने मैथ्स क्यों नहीं लिया, बट अदरवाइज मरकरी एंड जुपिटर के कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो ये पूरा सीए की कुंडली बनती है. कोई भी जैसे जो सब्जेक्ट उन्होंने लिखे हैं, सीए, सीएस, बीएफए, चल रही है, ऑल आर कनेक्टेड, एक्चुअली इंटरकनेक्टेड. तो ये वैसे भी सन मरकरी का जो एसोसिएशन है, तो इट कैन मेक यू गुड सीए आल्सो. फाइनेंस में आप कह सकते हैं, या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है. इसमें तो कोई और दशा आ रही है. अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इट्स अ गुड हॉरोस्कोप. बट ओनली प्रॉब्लम इज कि ये जो सैटर्न है, ये 7th हाउस का जो लॉर्ड है उससे 6th पोजीशन में है. तो दैट इज रियली अ नेगेटिव पॉइंट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये जो इसका लॉर्ड है ये अपने से 6th पोजीशन में चला गया, तो वो एक नेगेटिव बनता है. बट क्योंकि दो महापुरुष योग हैं और जुपिटर भी देख रहा है इस हाउस को, और ये जो प्रोफेशन का हाउस है नेचुरली दीज आर वेल प्लेस्ड, तो कुछ तो मतलब बहुत अच्छा होगा एक तरह से. जो इंडिकेशन है कि सीए वगैरह तो कोई कर ही सकता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. बट उसके भी बियॉन्ड कुछ होगा. हाँ, कुछ जैसे कोई बहुत पॉलिटिक्स में होते हैं ना लोगों की, मे बी फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह कुछ बन जाए. पॉलिटिक्स में जाने के चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है. Can he be a very successful painter? That is there. That is the possibility because यहाँ पर वीनस है. जैसे वैंगो और इनके जैसे एमएफ हुसैन के जैसे पेंटर्स हैं, वर्ल्ड फेमस हैं. इनका 11.4 सन है, उससे फेम तो इनका बहुत स्ट्रांग है और प्रॉस्पेरिटी भी दिख रही है, और इनको फाइनेंस में इंटरेस्ट भी है, बता रहे हैं. One thing is there, he can be, he is very creative also. Exactly. और इनको फाइनेंस में इंटरेस्ट भी बता रहे हैं, और इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दिख रहा है. So he can be a very successful painter, artist. कोई भी मतलब ऐसे क्रिएटिविटी का काम करेगा, डिजाइन हो या आर्टिस्टिकल वर्क करेंगे तो इन्हें उसमें ज्यादा सफलता मिलेगी. इनको एग्जैक्टली इनका आर्टिस्ट में, क्योंकि इन्होंने मैथ्स नहीं ले रखा है तो सीए में उनको प्रॉब्लम आएगी. So maybe he can pursue a career in the field of chartered accountancy, और साथ में अपनी एक हॉबी भी pursue कर सकते हैं वो फाइनेंस में, and he will be everywhere.
सुपर्ब। अब आप बता रही हैं विनू जी मैथमेटिक्स नहीं लिया इसने? हाँ जी, मैथमेटिक्स नहीं है। सर यहाँ मार्स मरकरी कॉम्बिनेशन है तो मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। बट लिया नहीं है ना उसने, मतलब ऑलरेडी नहीं है मैथमेटिक्स। उनको इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स उनका में। रुझान आर्टिस्टिकल वर्क में ज्यादा लग रहा है। एग्जैक्टली। सर ये जब छोटे थे तो पेपर से 3 डायमेंशनल बंदूक और खिलौने बनाते थे। अच्छा। और अभी और बचपन से पेंटिंग करने, क्लास 4 से शायद कार्टून्स बनाते थे बहुत अच्छे अच्छे, और पूरी स्टोरी किताब भर देते थे कार्टून्स बना बना के, जिसमें आप सिंबलाइज करते थे। जो स्टिक मैन होता है उसके मूवमेंट्स बिल्कुल ऐसे होते थे जैसे कि रियल मैन देख रहे हो आप। तो डिजाइन मैं का बता कोर्स रही हूँ कराइए इनका ना। है। तो डिजाइनर हो गया। आप इन्हें ग्राफिक्स में इसमें इनको निकाल दीजिए। टेक्निकल ड्राइंग दिलवा दीजिए आप। टेक्निकल ड्राइंग में ही विल डू वंडर्स। अकाउंट्स इनकी अच्छी नहीं है, मैथ इन्होंने ली नहीं इसी वजह से। तो बट इधर अच्छी होनी चाहिए ना, इधर कॉम्बिनेशंस के बेस पे। इनकी बिजनेस स्टडीज में दिमाग है इनका, लेकिन अकाउंट्स वगैरह अच्छे नहीं करते हैं। ये डिजाइनर है। नहीं, मेरे ख्याल में वो डिजाइन का कराइए कुछ ऐसा। आप इन्हें ग्राफिक्स कराइए या गेम जो बच्चे बना लेते हैं ना, डिजाइनर भी हो सकता है। गेम बनाते हैं जो बच्चे, उस तरीके का आप इन्हें गेम्स, हाँ मेरे को यही लगा कि बड़े होके शायद जैसे ये एवाटार जैसी मूवीज आती है ना, इनमें सारी डिजाइनिंग ग्राफिक्स होती है सारी, इस तरह उस की टाइप चीज का है, उस टाइप का अच्छा हो सकता है। इनको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। कंप्यूटर्स में तो है ये कंप्यूटर साइंस के साथ, कंप्यूटर में तो पर इसमें कंप्यूटर दिखा के है लिए ना मेन कि मैथ्स मार्स तो और चाहिए। सन एग्जॉल्टेड है। D10 में वीनस वर्गोत्तम है। जैन सर, इनकी डेट ऑफ बर्थ आपने क्या डाली हुई है? 28 अप्रैल 2003। पर जो इन्होंने लिखा है 29 है। होगा चेंज हो गया क्या? हाँ सर, डेट चेंज्ड है सर। 29 इसलिए सर, इसीलिए इनकी दशा हमें समझ नहीं आ रही थी। दशा इज डिफरेंट इनकी। 1 मिनट, 29 करते हैं। और नेक्स्ट ईयर तो इनका बहुत अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से तो। हाँ सर, हम यही देख रहे थे कि दशा इनकी केतु की चल रही थी। हाँ, बट अब पता प्लैनेट नहीं कैसे पोजीशन चेंज हो इज गई। सेम। रश्मि किरण सबको सेम ही है सर अभी तो। सब कुछ सेम है। दशा चेंज हो गई। हाँ, जैसे ही सर नेक्स्ट ईयर इनकी सैटर्न की दशा, मतलब केतु में मरकरी चल रहा है। अच्छा, अभी तो आई थिंक सर इनका केतु पीरियड चल रहा है अभी 2022 तक, इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बता रहे हैं पढ़ाई कि में। हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं है, वो केतु की वजह से है। ये 24 जनवरी 22 के बाद एकदम एक्टिव हो जाएगा इनका हाँ, सब वीनस का कुछ। पीरियड आ जाएगा, फिर तो उसको जो भी कराना है, आप डिजाइन का कोर्स कराइए अच्छे और से। वीनस तो अपने आप में बहुत क्रिएटिव है, तो बहुत ही पॉजिटिव आने वाले रिजल्ट। सर हम क्रिएटिव क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वीनस इज एक्सॉल्टेड एट इज इन ट्राइन। फिफ्थ हाउस इज वेरी स्ट्रांग। इनका फिफ्थ हाउस, द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ में एग्जॉल्टेड मार्स, टेक्निकल में क्रिएटिविटी करेंगे तो काफी। मार्स योग कारक है और पंच महापुरुष योग बना रहा है। ट्राइन का लॉर्ड क्वाड्रेंट में है। इसका जो क्रिएटिविटी का जो मरकरी कहें या वीनस कहें, बोथ आर इन अ वेरी गुड पोजीशन एक्चुअली। जुपिटर देख रहा है। वैसे वीनस के ऊपर शनि की भी दृष्टि है। दोनों जगह देख रहा है। शनि भी देख रहा है वीनस को। हाँ, जुपिटर तो फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ तीनों हाउस को देख रहा है ना, और वो काफी अच्छा है। सर मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा ये चार्ट? बताइए कैसा रहेगा? मार्स एक्सॉल्टेड है, नवमांश में लग्नेश, बट सैटर्न इसका लॉर्ड वीक है। रवि जी बताइए कैसा रहेगा मैरिज का लॉर्ड? नहीं सर, मैरिज इनकी वीनस अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा। मंगल बैठा हुआ है, तो इनकी जो वाइफ होगी वो थोड़ी वो पराक्रमी होगी। पर जुपिटर भी देख रहा है सर, वीनस अच्छा है। नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय पराक्रमी? Courageous, वॉरियर। she will be a strong, dominating. इनके लगन में जुपिटर बैठा हुआ है, तो ये जुपिटर और मार्स वाला कॉम्बिनेशन है सर। गुरु मंगल। So the person could have the ego problem. और सर सेवंथ का लॉर्ड 12th में जाके बैठ गया। सर लग्न चार्ट से भी तो दिखता है ना, आपके 7th हाउस का जो रूलिंग प्लैनेट है उससे आपके स्पाउस का पता चलता है, उसमें भी मार्स है
तो देखिए, उससे भी पता चलता है कि स्पाउस विल बी Jupiter वेरी is supposed to एनर्जेटिक। be very good in the Lagna, exalted है, सब कुछ है, but normally it is said that exalted Jupiter in the Lagna is not good for the purpose of marriage. There are always problems in the marriage. Ego problem because Maybe it's debilitation sign of Jupiter, उसी को देखता है ये, और मंगल और राहु दोनों का एसोसिएशन है इस 7th हाउस के ऊपर। और दूसरा नवांश में भी अगर आप देखें तो जो 7th हाउस की क्या पोजीशन है? 7th लॉर्ड 9th में। It is afflicted दो with malefic। all malefic planets. पाप का 3 में चला गया। पाप का 3 नहीं, सारे malefic का एसोसिएशन है। राइट। सारे जो मर्करी के बस मार्स का है एस्पेक्ट, राहु का है, बाकी जुपिटर और वीनस नहीं ना, उधर लग्न पे मार्स राहु भी राहु देखता बैठे है हैं ना इधर। उससे। नहीं, you see here, सन भी देख रहा है, राहु भी this देख रहा 7th house, इधर सन केतु, इधर सैटर्न, राहु देख रहा है, मार्स भी देख रहा है, तो दिस इज एसोसिएटेड विद ऑल मेलिफिक प्लैनेट्स। अच्छा, वो रिलेशनशिप तो 8th हाउस से देखते हैं ना नवांश में? नहीं, बट 7th हाउस मैरिटल रिलेशनशिप। 7th हाउस मार्स तो आस्पेक्ट नहीं कर रहा शायद इसको, ये मार्स है ना, ये नहीं कर रहा। 8th हाउस को कर रहा है ना, 8th हाउस को कर रहे हैं ना, तो इसके दोनों तरफ सारे मेलिफिक का एसोसिएशन मेलेफिक्स हैं। आप कर रही हो। ओके। तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी 7th हाउस का लॉर्ड इन द 12th हाउस, that indicates losses in the marriage, losses due to the marriage, loss of a spouse, all those things. सर सैटर्न भी 2nd हाउस को देख रहे हैं, तो क्या है? एक अच्छी तो वो भी हार्मफुल। एक अच्छी चीज नवांशा में सर, मरकरी जो लॉर्ड है वो बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है जुपिटर और वीनस के साथ। वो तो ठीक है, बट ये सारे मेलिफिक का भी एसोसिएशन है, तो इट इंडिकेट्स प्रॉब्लम्स। हाँ, मतलब ऐसे जैसे मैंने कहा कि जुपिटर जब उच्च का होकर लग्न में होता है ना, तो ये मैरिज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सेपरेशन डाइवोर्स, बट इट गिव्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सर प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में ही रहती है मोस्टली, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होनी थी। नहीं, एफ्लिक्टेड भी है ना ये, इसको देखिए कि सारे मेलिफिक का दोनों तरफ एसोसिएशन है इसके यहाँ पर। सर वैसे मैं एक जगह लग्न स्ट्रॉन्ग है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सेपरेशन डाइवोर्स होगा, बट प्रॉब्लम रहेंगी, डेफिनेटली प्रॉब्लम रहेंगी, बट अदरवाइज इट्स अ वंडरफुल हॉरोस्कोप। इससे बेटर हॉरोस्कोप क्या है? वन थिंग सर, इनकी लव मैरिज वर्क प्लेस पे होगी क्या? लेट अस सी। 5th लॉर्ड इज मार्स, 5th और 7th का कनेक्शन देखना पड़ेगा। हाँ, तो 5th लॉर्ड इज इन द 7th, और सर मार्स बिजनेस में, बिजनेस का लॉर्ड प्लेस मार्स है। हाँ, एंड मार्स इज आल्सो द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, so naturally he will get a girl from his own place, wherever work place, हाँ, जहाँ काम कर रहा होगा वो, तो that will get converted into marriage. Okay. सर इसमें ऐसे बोल सकते हैं जैसे 7th लॉर्ड जो है 12th में है, तो मे बी द वाइफ वुड बी रिलेटेड टू सम अब्रॉड। नहीं, 7th लॉर्ड इज इन द वाइफ के लिए तो 12th, 6th हाउस हो जाएगा ना, अपने से 6th हो गया, एंड दिस इज द हाउस ऑफ लॉस, 6th हाउस, तो उसको जो 7th का लॉर्ड अगर 12th में जाता है तो इट्स नॉट सपोज्ड टू बी अ गुड पोजीशन एक्चुअली। सर ये फैक्ट सही है कि कर्क और मकर लग्न वालों का जो मैरिटल हैप्पीनेस है वो मतलब शादी बस चलती है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती। नहीं, अगर जुपिटर वहां पर है, अगर जुपिटर वहां पे, ओके। So, but जैसे मार्स इज इन 7th हाउस बट दैट्स इन एक्सॉल्टेड साइन, तब तो मार्स से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हमने पढ़ा था जब हम लोगों ने जब मैरिज की बात हम कर रहे थे कि इफ मार्स और सैटर्न आर इन द 7th हाउस इन देयर ओन साइन, दैट इज नॉट सपोज्ड टू बी गुड फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, और इवन इन एक्सॉल्टेड साइन। हाँ, अपने साइन मतलब एक्सॉल्टेड साइन में भी, हाँ, मतलब वही है उसका। Okay. और सर अगर डेबिलिटेशन में हो 7th हाउस में मार्स या सैटर्न, वो ठीक है, वो इतना खराब नहीं करता, बट ये अपने साइन में या एक्सॉल्टेड होके उस हाउस को प्रॉस्पर करते हैं, मतलब मैरिज के लिए तो खराब ही हो गया ना वो। सर अगर लग्न में डेबिलिटेड जुपिटर बैठा हो तब भी मैरिज इफेक्ट रहेगी? नहीं, जब जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है।
सर मैरिज के लिए अगर हम 3, 7, 11 का ट्राइन देखते हैं तो उसमें भी मार्स और राहु दोनों बैठे हुए हैं। 3, 7, 7, 11 हाँ, ये मार्स और राहु दोनों हैं। मार्स और राहु हैं तो मैरिज मैरिज में प्रॉब्लम्स इंडिकेटेड हैं, मतलब मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं है, बट एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, प्रोफेशन इज कंसर्न, वेल्थ इज कंसर्न, वो आपकी सारी जो एक्सपेक्टेशन है उनको सरपास करेगा वो। सर कैन वी से बिकॉज जुपिटर लगन में बैठ के बेसिकली मेक्स यू अ लिटिल बिट मोर ऑन द इगोइस्टिक साइड, और मार्स जो आपका स्पाउस है, she is also basically a very you can say the word I use पराक्रमी, और थोड़ा सा वो अपना ईगो क्लैशेस बहुत है, ईगो क्लैशेस आ जाएंगी। राइट नहीं, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आर करेक्ट एक्चुअली। तो ये है विनू जी, आपका वाकई में बहुत अच्छा हॉरोस्कोप है, एंड वी ऑल विश हिम बेस्ट एक्चुअली, कि नाम रोशन करे आपका भी। ईगो से तो हम बहुत परेशान हैं अभी से। नहीं, केतु का पीरियड है, देखिए उसका जो पीरियड चल रहा है ना, केतु का पीरियड है, तो दैट्स व्हाई केतु बढ़ाता है सर। केतु इज मेकिंग हिम इगोइस्टिक। ये लगन का जुपिटर भी बना रहा है। केतु तो डिटैच कर रखा है। इगोइस्टिक इज बिकॉज़ ऑफ द प्लैनेट्स, जुपिटर सारे प्लैनेट्स जो हैं उसके, बट यही है कि केतु की दशा में परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती जो होनी चाहिए। तो अभी नेक्स्ट ईयर ऑन, हाँ नेक्स्ट ईयर खत्म हो ही रहा है, तो उसके बाद मेरे ख्याल में सब अच्छा हो ही जाएगा। लेकिन दिल का बहुत अच्छा होगा ये बच्चा। नहीं, उच्च का सूर्य है इनका, डेफिनेटली ही इज वेरी नाइस एट हार्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। जुपिटर उच्च का है लग्न में, तो फ्रॉम एवरी एंगल इज अ वंडरफुल पर्सन। सर हम आपको बता रहे थे ना, ये बचपन क्लास 4th से शायद ये रोज हमारे पाँव दबा के सुलाता है हमें, आप ये देखिए। हाँ वो तो पता ना, ये जो सन जिनका उच्च का हो तो ऐसे लोग ऐसे होते हैं। अच्छा सर, हम एक चीज और पूछ रहे थे, इनकी सिस्टर का ना 9th का वो है लग्न, लॉर्ड 9th है इनका, और शनि भी बैठा हुआ है उसमें, तो क्या उनको हम नीलम पहना सकते हैं? नहीं, इट्स लॉर्ड ऑफ 2nd and 3rd हाउस। तो नहीं, दिवाकर को नहीं, इनकी सिस्टर को। हाँ, सिस्टर का आप कहना है 9th लगन है, तो सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ 2nd and 3rd हाउस ना। यस तो ये मारक स्थान है, इसे अवॉइड करिए। मतलब लग्नेश नहीं है ना, लग्नेश नहीं है। नॉट लग्नेश, मारक हो गया बल्कि एक तरह से। अच्छा, और अगर उनका लग्न में 12th साइन है तब किस किस हाउस का लॉर्ड बना? जब 11th and 12th का बना, 10th और 12th का बन जाएगा ना। हाँ, 11th and 12th का 11th and 12th का बनेगा। तो क्या और वो सैटर्न लग्न में बैठा हुआ है, तो इनकी सिस्टर पहन सकती हैं? नहीं, शुड अवॉइड, शी शुड अवॉइड, क्योंकि वो छोटे भाई बहनों के लिए भी 3rd हाउस के लिए परेशान करेगा फिर। नहीं, बट व्हाई यू वांट नीलम फॉर हर? शी वांटेड टू वेयर, दैट इज व्हाई। नहीं, नीलम ऐसे मत पहनिए। ओके, चलिए ठीक है, आई थिंक वी विल कंटिन्यू, बट इट्स रियली वंडरफुल हॉरोस्कोप, गुड, अच्छा लगा काफी देख के जो है। सर जैसे श्री राम जी की बता रही थी, वो उन्होंने देखी थी उनकी जन्मपत्री, उनकी भी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी ना। हाँ, बस वही समझ लीजिए हम। उनके भी लगन में जुपिटर ही था, और बाकी सब कुछ अच्छा करने के चक्कर में मैरिज को पीछे छोड़ देते लगता है। मैंने तो पूजा करी। उनका भी उच्च का जुपिटर लगन में था। करेक्ट। लग्न का ये देखा गया है कि जब उच्च का जुपिटर होता है ना, आई एम स्टिल टू फाइंड आउट कि ऐसा क्यों होता है, बट आई हैव डिस्कस्ड विद लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ द टाइम मैरिड लाइफ इज नॉट गुड एक्चुअली, मे बी आई डोंट नो, इट्स द 7th हाउस प्रोबेबली डेबिलिटेटेड पॉइंट है उसका 7th हाउस में, उसकी वजह से है या क्या है, नो। एक क्विक क्वेश्चन, क्योंकि इनका जुपिटर असेंडेंट है में है, इनका इज ही नॉर्मल इन वेट? देखिए जुपिटर यहाँ 4th साइन में है, वाटरी साइन में, हाँ मून में, और जुपिटर इज अ बल्की प्लैनेट, तो वेट तो बढ़ ही जाएगा बाद में। तो अभी नहीं होगा, आगे बढ़ेगा। हाँ, अभी तो अगर बच्चा है, अभी तो क्या। सर इनके रिलेशन अपनी सिस्टर से पता चल सकते हैं इनके हॉरोस्कोप से? मंगल है तो अच्छी पोजीशन है, सब कुछ ठीक है। थर्ड हाउस में सर पड़ेगी, कौन सी राशि पड़ेगी? छठी राशि पड़ गई ना, और मरकरी बहुत अच्छा बैठा हुआ है। हाँ, मरकरी भी अच्छा है, मार्स भी अच्छा है,
तो रिलेशन तो सबसे ठीक रहेंगे, ऐसे लोगों के रिलेशन सबसे ठीक होते हैं। नहीं, वैसे भी ये बच्चा बहुत ही गुड हार्टेड, गुड नेचर का रहेगा whole वही life। है। ये किसी का बुरा नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, आई थिंक विल कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर। ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। Okay, Thank you, Good night, sir. Thank you.